The BJP government seems completely confused on how to handle the Kashmir issue. Separatists want Kashmir to burn again, and the BJP PDP government seems to be playing into their hands. I want to go across now to Mukhtar Abbas Naqvi, Minister of State for Minority Affairs. He was sent by the Prime Minister on a special mission to Kashmir to look after the flood-affected areas. He's now joining us on the newsroom. Mr. Naqvi, it seems the BJP government is completely confused on how to handle Kashmir. The separatists, the Intelligence Bureau tells us, are trying to revive what happened in 2010 with the stone pelting agitation in the manner in which Masarat Alam has been created into a martyr of sorts, an icon for Kashmir. You've done exactly what Syed Ali Shah Gilani wanted, sir. One thing I wanted to clarify, Rahul ji, neither BJP government is confused, nor BJP is confused, nor the people of the Jammu and Kashmir is confused. The peoples who wanted to destroy our unity, peoples wanted to destroy our solidarity, they are confused. They can understand that this government, and as far as the BJP is concerned, we will not allow this type of the peoples, this type of the nefarious activities, this type of the Talibani activities to run. That is why if you see in a 24-hour, the peoples who are involved in this type of the anti-national, anti-Indian activities, they are in jail. So nobody is confused. Sir, but today we are very much Friday. clear. Friday is when you know that people congregate at masjids for the afternoon prayers. You could have arrested him on Thursday. You could have arrested him on Wednesday after the rally happened. Instead, you delayed this all the way till Friday when you know that sentiments are already running high. You are the Minority Affairs Minister. You understand the problems in Kashmir. Just look at the manner in which this is being mishandled, sir. Rahul ji, you are very senior journalist. You already covered Kashmir and the politics of the Kashmir and the different type of the activities in Kashmir. If you see, this is not the first time when the patharbazi is going on, when the narebazi is going on. Yes, first time is the action is taken within a 24-hour. And this is the very strong and very clear-cut and very effective message for those peoples who wanted to do the Talibani Tando in the land of the Kashmir or land of the any place or anywhere in the country. We will not allow, or nobody is allowed from the Kashmir to Kanyakumari. The peoples of the... Your defense this evening is this has happened in the past. It's happening under our watch as well. But this is exactly what you said you would change. If I pull out the comments the BJP made during the 2010 agitation, you were angry with Omar Abdullah and the Congress for mishandling the crisis. Yes. Let me tell you how things have changed, sir. After Syed Ali Gilani got old, he's not been in good health. Nothing's been happening for the past 5 years. Your government, under your watch, Masarat Alam comes out. Suddenly, the rebels in Kashmir, the terrorists in Kashmir, have a new icon who they can look up to. You've created the demon called Masarat Alam, made him much bigger than he ever was before this. When Musharraf Alam was released, at that time, BJP as well as the central government taken very tough and very strong and very clear-cut stand that it is not acceptable. एंड उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद फिर कार्रवाई उनकी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी और वहाँ की सरकार ने किया। जहाँ तक सवाल है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि पहली बार जो है वो कोई आतंकवादी और कोई राष्ट्र विरोधी नारे वहाँ लगे हों, और ये जरूर पहली बार हुआ है कि ऐसे आतंकवादी और राष्ट्रद्रोही नारे लगाने वालों के खिलाफ फौरन कार्रवाई हुई है। एक चीज, दूसरी चीज कि जहां पर तक आपने कहा कंफ्यूजन, और जो पार्टी, जो सरकार पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्रद्रोही गतिविधियों के प्रति बिल्कुल किसी तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ दी समझौता with terrorism or separatism or such type of the anti-Indian or anti-national activities. तो then आप जो है वो कहाँ कंफ्यूजन दिख रहा है, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको बहुत, राहुल जी, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, जितना गुस्सा, जितना आक्रोश, जितना दर्द देश भर में इस तमाम घटनाओं को लेकर है, उतना ही दर्द जम्मू और कश्मीर के लोगों में भी है। जम्मू कश्मीर का आम आदमी, आम नौजवान जो है वहां पर सुकून चाहता है,
वहाँ पर शांति चाहता है, वहाँ पर तरक्की चाहता है। वो चाहता है कि इस तरह की आतंकवादी, इस तरह की और भारत विरोधी गतिविधियाँ, इस तरह की अलगाववादी गतिविधियाँ जो उसके तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, वो ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का वो दूसरा स्वरूप हिंदुस्तान नहीं बन सकता। और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो लोग इस तरह की तालिबानी तांडव कर रहे हैं, उन्हें जो है समझना चाहिए कि ये देश जो है उनके तालिबानी तांडव की जगह नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो बता रहा है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि मसारत आलम हफीज सईद से टच में है, कि मसारत आलम की एक्टिविटीज को पाकिस्तान गाइड कर रहा है, आईएसआई उसकी मदद कर रहा है। इस तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आपके पास पिछले कई दिनों से थी, फिर भी इतने हफ्ते आपने मसारत आलम को ये पूरी तैयारी करने दी। 2010 में स्टोन पेल्टिंग हुई, अब 2015 के अप्रैल में आपके राज में एक बार फिर से स्टोन पेल्टिंग हुई। पिछले 5 साल से खामोश पड़ा था कश्मीर। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं खामोश था। आपको अच्छी तरह याद होगा कि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, चुनाव पार्लियामेंट के या असेंबली के, तो पार्लियामेंट के चुनाव में इन्हीं ताकतों ने चुनाव का बहिष्कार की घोषणा की। कहा हम वोटिंग करने नहीं देंगे, हम वोटिंग के लिए लोगों को निकलने नहीं देंगे। लेकिन हम तो जम्मू और कश्मीर के लोगों को नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, हम सलूट करते हैं कि उन्होंने इन आतंकवादियों और इन लगाववादियों की धमकियों के बावजूद भी लोकतंत्र के पर्व में खूब जम करके भागीदारी, हिस्सेदारी की। इसीलिए उनके अंदर जो डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन ये है कि उनको मास सपोर्ट नहीं है। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ ऐसे लोग जो लोग कि कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी रूप में ऐसी ताकतों के चंगुल में आ गए हैं, उनको मिसयूज करके, उनको एक्सप्लॉइट करके वो इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि बीजेपी जिनकी मुखालफत करती थी, 3 दफा कम से कम पीडीपी ने बीजेपी को एम्बैरेस किया है। क्या आप मानेंगे आज कि पीडीपी से अलायंस करना बीजेपी की और मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, कि जिन लोगों को, जिस चीजों को आप असूल बनाया करते थे, जो आपकी आइडियोलॉजी का हिस्सा थी, आज लग रहा है कि बीजेपी उन सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर गई है। और जिस तरह की कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में कांग्रेस थी कश्मीर को लेकर, ठीक उसी तरह की कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में आज आप हैं। देखिए, जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हमें जो चुनाव में सीटें दी हैं, वो इसलिए दी थी कि कश्मीर की हमें रक्षा करनी है। हमें आतंकवाद और अलगाववादियों से हमें सुरक्षित रखना है कश्मीर को। अगर हम सरकार से बाहर बैठे होते तो आज हम जो दबाव बना रहे हैं, आज जो हम अपनी नीतियों को, अपनी बात को स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, तो या आज जो सरकार जो है वो जो कार्रवाई फौरन कर रही है, इससे पहले लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी सरकार देखी है, उससे पहले पीडीपी की भी सरकार देखी है। हम उसका यहाँ फर्क नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आप जरा सा अपनी देख लीजिए उसकी हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी, आपको समझ में आ जाएगा कि आज में और उसमें फर्क क्या है। अगर कोई किसी गलती से भी कोई बयान देता है तो उसको बयान वापस करना पड़ता है। अगर गलती से भी किसी ने नारे लगाने की कोशिश की और भारत के खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। चलिए, और आगे भी होगी। आगे की रणनीति क्या है? मसरत आलम अभी जेल में है, क्या ऐसा तो नहीं कि अगले जुम्मे उसको बेल मिल जाएगी, वो फिर आ जाएगा? क्योंकि सेपरेटिस्ट इस वक्त एक बार फिर से तबाही मचाना चाहते हैं कश्मीर वैली में। क्या गारंटी है कि आपके राज में मसारत आलम जेल में ही रहेगा और फिर से सड़कों पे नहीं उतर आएगा? मैं एक बात बताऊं आपको, जो ये इस बार पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पत्थरबाजी वहां की जनता पर नहीं हो रही है। ये पत्थरबाजी वो अपने इस शैतानी मंसूबों पे कर रहे हैं, और उनका जो शैतानी मंसूबा है, इसी पत्थरबाजी में पत्थर के नीचे दब के रह जाएगा। हमारी बहुत स्पष्ट नीति है, हर चीज कैमरे पे, हर चीज टेलीविजन चैनल्स पे नहीं बताई जा सकती। बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका ली हुई है, और जो कुछ भी राज्य सरकार को कहना है कहा हुआ है। All right, you're making a tall claim. That claim will be tested because the separatists have a very diabolical plan. The question is, will the Modi government stand up to them, or will it compromise and buckle under pressure? Mukhtar Abbas Naqvi saying they won't buckle. So far, that claim is questionable. Let's see what happens from here. Mr. Naqvi, for joining us on the newsroom this evening. Thank you very much, sir.